ٹرمپ نے اپنائے ہرمز میں پروجیکٹ فریڈم عارضی طور پر روک دیا۔ پاکستان سمیت کئی ممالک کی درخواست پر فیصلہ کیا گیا۔ امریکی صدر نے ایران کے خلاف کارروائی کے بعد معاہدے میں پیش رفت کا دعویٰ بھی کر دیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان دو طرفہ اتفاق کا اعلان۔ معاہدہ طے پانے تک صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ آپریشن رکا مگر اپنائے ہرمز میں ناکہ بندی برقرار رہے گی۔ شہباز شریف نے صدر ٹرمپ کے فیصلے کو خطے میں امن کے لیے اہم قدم قرار دے دیا۔ وزیر اعظم پاکستان کا ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پروجیکٹ فریڈم روکنے کا اعلان کا خیر مقدم۔ پاکستان اور برادر ممالک کی مشترکہ درخواست پر مثبت پیش رفت کا اعتراف۔ سعودی عرب اور محمد بن سلمان کے کردار کو خطے میں استحکام کے لیے اہم قرار دیا گیا۔ خطے میں امن، مکالمے اور سفارتکاری کے فروغ پر پاکستان کا موقف واضح ہے۔ وزیر اعظم نے دیرپا معاہدے کے ذریعے پائیدار امن اور استحکام کی امید کا اظہار کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلان کے بعد عالمی منڈی میں تیل سستا ہو گیا۔ اپنائے ہرمز میں پروجیکٹ فریڈم عارضی روکنے کا اثر سامنے آ گیا۔ برینٹ خام تیل کی قیمت $108 فی بیرل تک گر گئی۔ UAE مربن خام تیل $106 فی بیرل پر آ گیا۔ WTI خام تیل تقریباً $100.6 فی بیرل میں فروخت ہونے لگا۔ جیو پولیٹیکل کشیدگی میں کمی سے عالمی منڈی میں ریلیف مل رہا ہے۔ ہم مسلمان صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی دوسرا ہمیں مغلوب یا مجبور نہیں کر سکتا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے امریکہ کے ہتھیار ڈالنے کے مطالبے کو مسترد کر دیا۔ عراقی وزیر اعظم سے امریکہ کو دھمکیاں واپس لینے کا مشورہ دینے کی درخواست کر دی۔ کہا طاقت کے استعمال کی دھمکیاں عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ اخلاق کے بغیر طاقت کو کھوکھلی ہوتی ہے۔ ایران خود کو ذمہ دار جبکہ مخالفین کو غیر ذمہ دار قوت قرار دیتا ہے۔ امریکی صدر کے دورہ چین سے قبل ایرانی وزیر خارجہ بیجنگ پہنچ گئے۔ عباس عراقچی اور چینی ہم منصب کی بیجنگ میں اہم ملاقات۔ وانگ جی نے ایران کے خلاف جنگ کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ چین نے کشیدگی کم کرنے اور مکمل جنگ بندی پر زور دیا۔ دونوں فریقین کے درمیان براہ راست مذاکرات کو ناگزیر قرار دیا گیا۔ عباس عراقچی نے کہا کہ ایران صرف منصفانہ اور جامع معاہدہ قبول کرے گا۔ چین اور ایران نے باہمی تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ سعودی عرب نے خطے میں بڑھتی فوجی کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار کر دیا۔ محمد بن سلمان کی زیر صدارت سعودی کابینہ اجلاس میں علاقائی صورتحال کا جائزہ، فریقین سے فوری کشیدگی کم کرنے اور تحمل سے کام لینے کی اپیل۔ پاکستان کی ثالثی اور سفارتی کوششوں کی مکمل حمایت کا اعادہ۔ اپنائے ہرمز پر جہازوں کی محفوظ اور بلا رکاوٹ آمد و رفت پر زور دیا گیا۔ سعودی اور پاکستانی وزارتوں کے درمیان قانونی تعاون کی مفاہمتی یادداشت منظور۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلان کے بعد ایشیائی اسٹاک مارکیٹس میں نمایاں تیزی۔ جنوبی کوریا کا کاسپی انڈیکس 7.85% اضافے کے ساتھ اوپر چلا گیا۔ چین کا شنگھائی کمپوزٹ انڈیکس 1.27% بہتری کے ساتھ بند ہوا۔ ہانگ کانگ اور بھارت کی اسٹاک مارکیٹس میں بھی مثبت رجحان دیکھا گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 100 انڈیکس 1.86% اضافے سے نئی بلند سطح پر پہنچ گیا۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کا رجحان برقرار رہا۔ امریکی ڈیموکریٹس نے اسرائیل کے جوہری پروگرام پر ابہام ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ 30 امریکی ایوان ڈیموکریٹس کے سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو کو خط لکھ دیا۔ کہا کہ امریکہ ایران کے خلاف جنگ میں ایسے ملک کا ساتھ دے رہا ہے جس کی ممکنہ جوہری ہتھیاروں کے پروگرام کا امریکی حکومت سرکاری طور پر تسلیم کرنے سے انکار کرتی آئی ہے۔ سرکاری ابہام کی پالیسی مشرق وسطیٰ میں عدم پھیلاؤ کو نامکمل بناتی ہے۔ امریکی ڈیموکریٹس نے کانگریس کو مکمل بریفنگ دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اپنائے ہرمز ایک عالمی گزرگاہ ہے جسے کوئی بھی ملک کنٹرول نہیں کر سکتا۔ ایران کو چاہیے کہ وہ مذاکرات کی میز پر آئے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس۔ کہا کہ آپریشن پروجیکٹ فریڈم لوگوں کو بچانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ امریکی افواج نے 7 ایرانی فاسٹ بوٹس کو تباہ کر دیا ہے۔ اپنائے ہرمز میں 10 سویلین سیلرز بھی ہلاک ہوئے۔ امریکی فورسز کے لیے خطرہ بننے والے ڈرونز اور بوٹس کو نشانہ بنانے کا عمل جاری رہے گا۔ امریکی ناکہ بندی کے باعث ایران کو یومیہ تقریباً $50 کروڑ کا نقصان ہو رہا ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ایران کے خلاف آپریشن ایپک فیوری مکمل کر لیا گیا ہے۔ ایران کے ترجمان دفتر خارجہ نے متحدہ عرب امارات کے الزامات مسترد کر دیے۔ بیان جاری۔ کہا کہ UAE کا امریکہ اور اسرائیل سے تعاون ناقابل قبول ہے۔ دفاعی کارروائی صرف امریکہ کے خلاف تھی۔ ابوظہبی میں فوجی اڈے ایران کے خلاف اقدام تصور کیا جا رہا ہے۔
ईरान मुखालिफ इक़दामात पर भरपूर रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। दूसरी जानिब ईरान के मरकजी खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान ने कहा है कि ईरान की मुसल्लह अफ़वाज ने मुत्तहिदा अरब अमारात पर कोई मिसाइल या ड्रोन हमले नहीं किए। अमारात से ईरान के खिलाफ कार्रवाई की गई तो उसका सख्त जवाब देंगे। जंग बंदी के लिए अमरीका, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात जारी, तजावीज़ का तबादला हो रहा है, रेड लाइंस पर बात हो रही है। अरब टीवी अल जज़ीरा की वाशिंगटन से रिपोर्ट जारी, कहा कि अमरीका बज़िद है कि वो किसी और नुक्ते से पहले ईरान के एटमी प्रोग्राम पर बात करना चाहते हैं। ईरानी चाहते हैं कि पहले ईरानी समंदरों की नाकाबंदी खत्म हो। अल जज़ीरा के मुताबिक वाशिंगटन और इसराइल में 2 से 3 हफ्तों की मुख्तसर जंग की बातें भी गर्दिश में हैं। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल, पंजाब असम्बली का 1 दिन का खुसूसी इजलास बुलाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खैराज तहसीन पेश किया जाएगा। इजलास में बर्री, बहरी और फ़िज़ाइया को खैराज तहसीन पेश किया जाएगा। अरकान असम्बली इजलास में भरपूर अंदाज में मार्का हक के हवाले से इजहार ख्याल भी करेंगे, जबकि शोहदा की कुर्बानियों को भी सलाम पेश किया जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने मार्काए हक को तारीखी कामयाबी करार दे दिया। दुश्मन को पाकिस्तान की अस्करी बरतरी और इत्तेहाद का वाज़ेह पैगाम। वज़ीर दिफा ने कहा कि अफवाज की जवाबी सलाहियत दुश्मन के अंदाजों से ज्यादा मौसर है। कौम बुनियानुल मरसूस बनकर अफवाज के साथ खड़ी है। नौजवान क़यादत ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस को तारीखी फतह करार दे दिया। नौजवान क़यादत के मुताबिक पाकिस्तान को किसी भी मैदान में शिकस्त नहीं दी जा सकती। मार्का हक की कामयाबी को 1 साल मुकम्मल, मुल्क भर में जश्न फतह की पुरवकार तक़रीबात का सिलसिला जारी है। वतन से मोहब्बत और कौमी यकजहती का भरपूर इजहार। इस्लामिया कॉलेज पेशावर में पाक फौज और कॉलेज के दरमियान दोस्ताना क्रिकेट मैच का इनेकाद किया गया। असातिज़ा और तलबा का भरपूर जोश व खरोश, ग्राउंड पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। पेशावर के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में भी जश्न फतह की रंगारंग तक़रीबात मुनक़िद की गई। मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं। तलबा ने मार्का हक की कामयाबी पर पाक फौज को जबरदस्त खराजी तहसीन पेश किया। मार्काए हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस को 1 साल मुकम्मल। दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानियों का अपने वतन से वालेहाना मोहब्बत और तजदीद वफा का इजहार। ओवरसीज पाकिस्तानियों का कहना है कि दुश्मन की कोई भी चाल, फरेब या धोखादही पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हम दूर हैं मगर दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। दुनिया में कहीं भी हो, पहचान सिर्फ पाकिस्तान है। पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद और नाकाबिल शिकस्त है। किताब मार्का हक कौमी तारीख की जामे दस्तावेज करार। कुर्बानी, अज़्म और इस्तिकामत की बसी इक्कासी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और जिद्दोजहद को नुमाया अंदाज में पेश किया गया। तारीखी लम्हात को तस्वीरी और दस्तावेजी शक्ल में महफूज किया गया। किताब को आइंदा नस्लों के लिए लाजवाल कौमी विरसा करार दिया गया। मुसन्निफीन के मुताबिक ये किताब पाकिस्तान की मज़ाहमत, इस्तिकामत और इज्तिमाई कौमी शऊर की अलामत है। मार्काए हक को 1 साल मुकम्मल होने पर शोबिस शख्सियात की जानिब से पाक फौज के किरदार को जबरदस्त अंदाज में खिराज तहसीन। मुल्क की दिफा और अमन में फौज के किरदार का एतराफ़। मुख्तलिफ फनकारों और शोबे से वाबस्ता शख्सियात ने अपने बयानात में कहा है कि मुल्क की दिफा, इस्तेहकाम और अमन के क़याम के लिए पाक फौज की पेशावराना सलाहियतें और कुर्बानियाँ काबिल फ़ख्र हैं। मार्काए हक में हासिल होने वाली कामयाबी ने न सिर्फ कौमी हौसले को बुलंद किया बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को भी बेहतर बनाया। पाकिस्तानियों की अक्सरियत अमरीकी ईरान सालसी की कोशिशों में अस्करी और सियासी क़यादत के किरदार की मोतरफ। अफसोस पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे के मुताबिक 55% अवाम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हामी, 38% शहबाज शरीफ के मोतरफ, 45% ने सालसी को पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी करार दे दिया। 37% के मुताबिक पाकिस्तान का आलमी तशक्कुस बेहतर हुआ। सालसी की हिमायत में चीन सरे फहरिस्त, तुर्की दूसरे नंबर पर, जबकि 31% ने सऊदी अरब और 24% ने रूस का नाम लिया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इलाकाई कशीदगी को पाकिस्तान के लिए अहम सबक करार दे दिया। तवानाई के मुतबादिल ज़राए की जानिब फौरी मुंतकली को नागुज़ीर करार दिया। हुकूमत खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए मुतहर्रिक है। मौजूदा सूरत हाल में मोहतात माशी हिकमत अमली अपनाने पर जोर। माशी तरक्की में कैपिटल मार्केट के कलीदी किरदार पर जोर। चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के मुस्तहकम रहने का दावा।
हालिया भारी अदायगियों के बावजूद पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम। IMF ने चंद रोज में 1 अरब 21 करोड़ डॉलर फंड्स मिलने के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर मज़ीद बढ़ जाएंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के दस्तावेज के मुताबिक एक साल में ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर में 6 अरब 50 करोड़ 96 लाख डॉलर्स का इजाफा हुआ। स्टेट बैंक के ज़खायर एक साल में 5 अरब 55 करोड़ 29 लाख डॉलर्स और कमर्शियल बैंकों के ज़खायर में 95 करोड़ 67 लाख डॉलर्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और वफाकी आईनी अदालत को हमपल्ला करार दे दिया गया। याहिया आफरीदी के सरबराही में अहम तफसीली फैसला जारी किया गया। दोनों अदालतें एक दूसरे के मातहत नहीं बल्कि आज़ाद दायरा इख्तियार रखती हैं। आईनी मुकदमात वफाकी आईनी अदालत जबकि रेगुलर केसेस सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। मुतज़ाद फैसलों से बचने के लिए अदालती एहतराम का उसूल अपनाने की हिदायत। हाई कोर्ट्स के आईनी फैसलों के खिलाफ अपीलें वफाकी आईनी अदालत में सुनी जाएंगी। के इलेक्ट्रिक समेत बिजली सारिफिन को 63 अरब रुपए से जायद रिलीफ का इम्कान। डिस्कोस की सहमाही एडजस्टमेंट की दरख्वास्त नेपरा में जमा। 19 मई को नेपरा में दरख्वास्त पर समाअत होगी। कैपेसिटी चार्जेस में 36 अरब रुपए से जायद कमी की दरख्वास्त। सिस्टम चार्जेस और फीस में 11 अरब रुपए की कमी की तजवीज़। बिजली सारिफिन को रिलीफ का हतमी फैसला नेपरा समाअत के बाद होगा। बलोचिस्तान के इलाके रखनी और उसके गर्दनवा में ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5 रिकॉर्ड की गई जबकि उसकी गहराई 30 किलोमीटर थी। ज़लज़ला पैमा मरकज़ का कहना है कि ज़लज़ले का मरकज़ रखनी से 12 किलोमीटर जनूब मशरक़ में वाक़ था। इब्तदाई इतलात के मुताबिक किसी जानी या माली नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत ज़रई इनकलाब में तेजी। बखर में 1800 एकड़ का जदीद फार्म 60 दिन में मुकम्मल। 13 सेंट्रल पेविट सिस्टम्स और सोलर सिस्टम से आबपाशी का जदीद निज़ाम कायम। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पेंटेरा फार्म्स फारूक सईद ने बताया कि ये ज़मीन चंद माह कबल 20 से 50 फीट बुलंद रेत के टीलों पर मुश्तमिल थी जिसे मुख्तसर मुद्दत में काबिल काश्त बनाया गया। मजमूई 1800 एकड़ में से 1300 एकड़ पर काश्तकारी जारी है जहां गंदुम और रोड्स ग्रास उगाई जा रही हैं। चीनी कंपनियों के ताउन से हाइब्रिड बीज मुतारिफ कराए गए जो जदीद ज़राई तरक्की की जानिब एक अहम कदम है। मुलिम जफर खान ने सॉलिड वेस्ट बोर्ड के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। कराची में सफाई का निज़ाम नाकाम, कचरे के ढेर भरने लगे। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड पर अरबों रुपए के बावजूद कारकर्दगी न दिखाने का इल्ज़ाम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत पर बद इंतजामी के इल्ज़ाम। 12 साल कारकर्दगी की फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची का शहरी हुकूक के लिए एहतजाजी तहरीक जारी रखने का ऐलान। कराची की सबसे बड़ी सड़क शारे फैसल पर मोटरसाइकिल और बसों के लिए अलहदा लेन का फैसला। कराची ट्रैफिक पुलिस का नया लेन मैनेजमेंट प्लान नाफिज करने का ऐलान। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह ने कहा कि मुख्तस लेन की खिलाफ वर्जी पर कैमरे के जरिए ई चालान जारी होगा। ट्रैफिक नज़्म व ज़ब्त बेहतर बनाने के लिए इक़दाम तेज किए जा रहे हैं। और ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन में खिलाड़ियों और इंतजामिया के दरमियान इनामी रकम पर तनाज़ा। विमेंस खिलाड़ियों ने इवेंट के बाइकआउट की धमकी दे दी। खिलाड़ियों को आमदन का 15% से कम हिस्सा मिलने पर एतराज। विमेन टेनिस प्लेयर एरिना सबालेंका का कहना है कि अगर फ्रेंच ओपन की इनामी रकम ना बढ़ाई गई तो खिलाड़ी इवेंट का बाइकआउट करेंगे।